الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے میرے ساتھ مل کے بآواز بلند پڑھیے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا جدی حسن والحسین۔ اچھا جی، ماشاءاللہ سے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کا خلاصہ ماشاءاللہ سے بیان کیا جاتا ہے، روزانہ 1 گھنٹے کی لائیو ہمارے یوٹیوب چینل پہ ماشاءاللہ کلاس ہوتی ہے، تو آپ سب ضرور جو ہے وہ اس کو سنا کریں۔ ابھی تو ماشاءاللہ کیونکہ ڈیلی پارے کی ماشاءاللہ خلاصہ کیا جاتا ہے، مطلب اس کے جو مضامین ہے یا جو بڑی مین باتیں ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ تو لاسٹ پچھلے جمعرات کو ہمارے 5 پارے ہوئے تھے، تو ہم نے 5 پاروں کا مختصر انتہائی جو ہے نا وہ خلاصہ بیان کیا تھا۔ تو ابھی ہمارے جو ہے 6 پارے سے لے کے 12 پارہ ماشاءاللہ سے آج بیان کیا گیا تھا لائیو کلاس میں، تو اس حوالے سے ہم تھوڑا سا کوشش کریں گے کہ چند تھوڑے سے منٹوں میں جو ہے وہ ہم اس کا تھوڑا سا خلاصہ آپ سب کو بیان کریں، صرف تعلیم و تربیت کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے زیادہ ان پاروں میں کن حوالے سے زیادہ گفتگو کی ہے، کن موضوعات پہ زیادہ زور دیا ہے۔ اصل میں قرآن پاک جو ہے وہ عمل کرنے والی کتاب ہے نا، آمنوا وعملوا الصالحات والی کتاب ہے۔ ایمان لانا ضروری ہے اور اس کے ساتھ عمل کرنا ضروری ہے۔ تو 6 پارے میں جو ہے وہ سورہ مائدہ بیان کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو اور مردوں کو بھی حکم دیا کہ آپ لوگ سورہ مائدہ جو ہے نا وہ لازمی پڑھا کرو، لازمی اس کو یاد کرو، اور خواتین کے لیے حکم فرمایا کہ سورہ نور پڑھا کرو۔ اب جی سورہ مائدہ کے حوالے سے کیوں بات کی جا رہی ہے؟ سورہ مائدہ میں مردوں کے حوالے سے، روزمرہ زندگی کے حوالے سے جتنے معاملات ہیں وہ سب بیان کیے گئے، مطلب شادی کے حوالے سے ضرورت پڑتی ہے، اور محرم نہ محرم کے حوالے سے بات کی گئی ہے، پھر اس کے حلال اور حرام کے حوالے سے بات کی گئی ہے، پھر جو اللہ تعالیٰ نے گوشت یا خنزیر یا جو بھی خنزیر کو حرام قرار دیا، مردار کو، خون کو حرام قرار دیا، اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ بھئی جو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے، اپنے سے یا اپنے باپ داداؤں کے یا قبیلے کی یا جی ایک رسم چلتی آ رہی ہے، ان رسموں کو چھوڑ دو، یہ فضول رسموں کو، اور جو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کے لیے حلال بھی وہی ہے۔ تو یہ سورہ مائدہ جو ہے، مائدہ دسترخوان کو کہا گیا۔ تو دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ نے آسمان سے مائدہ دسترخوان نازل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نازل فرمایا تاکہ ہم اس کو خوشی کا دن منائیں نا، نعمت کو ملنے میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ کائنات کی تمام نعمتیں ایک بڑی نعمت کا صدقہ ہمیں ملی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو اسی لیے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو ہم ہر نعمت کا چرچا نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ تو حضور کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شکر ادا کرو، نہ شکرے کبھی نہ بنو۔ تو مطلب حضور علیہ السلام کی شانیں بیان کرو، حضور کی نعت پڑھو، حضور کے اوصاف بیان کرو، اپنے بچوں کو بیان کرو، تو نہ شکرے نہیں بنو۔ تو اسی طرح پھر موسیٰ علیہ السلام کی بات آتی تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا؟ ان کی قوم پر من و سلوہ نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پاروں میں یہ بیان فرمایا کہ ہم نے مختلف قوموں کے اوپر بڑے بڑے معاملات کیے، ان کو بڑا نوازا، کھیتیاں عطا فرمائیں، ان کو باغات عطا فرمائیں، جانور اولادیں ان کو عطا فرمائیں، لیکن وہ لوگ ناشکرے نکلے۔ تو مومنو تم لوگ ایسا نہ کرنا۔ پھر منافقین جو ہوتے ہیں وہ بھی ناشکرے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ کوئی کام ان کا اچھا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جی نا اب ہم نے بڑی محنت کی تھی، اور جب کوئی کام برا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں لو جی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسے کیا کر دیا۔ فرمایا کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوتی ہے۔ اچھا جی، پھر یہاں پہ ان پاروں میں جو ہے وہ یہودوں اور نصارہ کی بھی مذمت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ لوگ کیوں نہیں لوگوں کو، اپنی عوام کو، اپنے جو ماننے والے آپ کے ہیں، شاگرد ہیں یا قوم ہے، ان کو کیوں نہیں میرے نبی کی شانیں پڑھ پڑھ کے بتاتے ہو؟ تو بتایا کرو۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہود و نصارہ کو پکارا کہ تورات میں اور انجیل میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان ہیں، اے محبوب یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودی عالم تھے، مسلمان ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے
कुरान पाक की आयत के वाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि ए उमर, हम अपने बेटों को तब जानेंगे जब हमारी बीवियां बताएंगी, औरतें बताएंगी कि ये तेरा ही बेटा है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हमने पहचाना अल्लाह की निस्बत से, कि अल्लाह ने हमें बताया कि मेरे महबूब की शान ये है, मेरे महबूब की बाल मुबारक ऐसे है, मेरे महबूब का हुस्न ऐसा है, मेरे महबूब का कद मुबारक ऐसा है, मेरे महबूब के वालिदैन कैसे हैं, उनके असहाब कैसे हैं, वो हिजरत कैसे फरमाएंगे, वो कैसे जिहाद करेंगे और कैसे गज़वात होंगे, ये सारे मामला जो है तौरात और इंजील में बयान किए गए हैं। तो अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया कि तुम आओ और मेरे महबूब के कदमों में बैठ जाओ, बस ठीक है ना, छोड़ दो। अच्छा एक और बात बताऊं आपको, आगे चलते हैं तो यहां पर फिर अल्लाह ताला ने मोमिनीन के अस्हाबुल जन्ना व अस्हाबुल नार, उलाइका हिज़्बुल्लाह उलाइका हिज़्बुश शैतान, अल्लाह ताला ने फरमाया दो ही जमातें हैं पूरी दुनिया में, अस्हाबुल नार हैं दोज़ख वाले, अस्हाबुल जन्नत हैं जन्नत वाले। जन्नत वाले कौन हैं? जो मुखलिस मोमिनीन हैं, जो सजदे करते हैं, जो इबादत करते हैं, जो रातों को जागते हैं, जो अल्लाह के अता की हुए रिज़्क़ में से बांटते हैं, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, हुज़ूर की जात के लिए अपनी जानों को निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है जनाब साहब, ये कौन है? अस्हाबुल जन्ना, औलिया हिज़्बुल्लाह, ठीक है ना, अल्लाह की जमात है, अल्लाह ने उनको अपनी जमात फरमाया। और जो अस्हाबुन नार कौन से हैं? दोज़ख वाले मुनाफिकीन, जो काफिर और जो मुशरिकीन है, बुतों को पूजा करने वाले, उनको बयान किया गया। फिर इन पारों में बार बार, हर पारे के शुरू में अल्लाह ताला ने, या सूरतों के शुरू में अल्लाह ताला ने बार बार तौहीद के हवाले से बना कि याद करो ये सारी कायनात अल्लाह ने बनाई है, किसी और ने नहीं बनाई। फिर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ दिन और रात के वाले से बताया, और फिर खेतियों के वाले से, चौपाओं के वाले से, जानवरों के वाले से बताया। अल्लाह ताला की ये जितनी गौर करो, फिक्र करो, तुम गौर क्यों नहीं करते हो? हर चीज में जो अहले इल्म है उनके लिए बेशुमार राज अल्लाह ताला ने रख दिए हैं। फिर एक और बड़ी बात है कि 18 अंबिया कराम का अल्लाह ताला ने इन पारों में 7वां, 8वां, फिर 9वां और फिर 10वां, 11वां और इवन के 12वां, इन तमाम पारों में देखिए ना, ये सूरह नाम आ गई, फिर सूरह इराफ आ गई, फिर सूरह अनफाल और फिर सूरह तौबा और फिर सूरह हूद और सूरह यूसुफ आ गई। इन सब में अल्लाह ताला ने अंबिया का जिक्र किया। 18 अंबिया कराम का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाम लेकर जिक्र किया, और 7 अंबिया कराम का तो अल्लाह ताला ने बार बार जिक्र किया। कौन? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, कौन? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। अब आप अंदाजा करें कि ये वो लोग थे, शुआइब अलैहिस्सलाम, तो ये वो लोग थे जिनकी जो अपनी कौमों पर अल्लाह ताला ने इनको नबी बनाकर भेजा। और ये सब अंबिया जब तशरीफ लेकर आए तो उन्होंने सबसे पहले अल्लाह की तौहीद का दर्स दिया कि भाई मुशरिकों को छोड़ दो, बुतों को पूजा करना छोड़ दो। तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम 10 लोगों को पूज रहे होते हो, हालांकि तुम्हारा रब तो वाहिद और यकता है और उसका कोई सानी नहीं है, वो तो एक है, उसने किसी को नहीं पैदा, किसी को मतलब वो उसका कोई बेटा नहीं है, ना उसका कोई बाप है। बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में कि अल्लाह ताला कहते हैं क़यामत का दिन होगा, मैं ईसा अलैहिस्सलाम से पूछूंगा, ए ईसा क्या तुमने कहा था अपनी उम्मत को कि मैं रब हूं? ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह मैंने तो नहीं कहा, ये तो खुद ही इन्होंने अपने से मन घड़त बातें बना ली, मैंने तो नहीं कहा। या जो उज़ैर अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने खुदा कहना शुरू कर दिया, वो कहेंगे अल्लाह हमने तो नहीं कहा, हमने तो कहा हम खुद एक अल्लाह की इबादत करते हैं, हमारा अपना इल्म कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई गैब का इल्म नहीं है, हमें तो जो अल्लाह ताला अता करता है वही आगे बताते हैं। तो रात हमें अता की हम वो बताते हैं, वो अल्लाह की किताब है, हमारी अपनी जाती किताब नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे फरमाया। और खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब यहूद और नसारा आते थे, सवालात करते थे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी ऐसे ही बयान करते थे कि क्या तुम्हारे सामने मेरी 40 साल की जिंदगी नहीं है? मैंने तो 40 साल कोई बयान ही नहीं किया, 40 साल के बाद जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो अल्लाह का कलाम ही मैं आप सबके सामने बयान करता हूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें लगता है ये कलाम जादू से आया, तो ठीक है, तुम भी तो बड़े जादूगर हो ना, तुम भी तो बड़े फसाहत और बलागत वाले हो, तो जाओ फिर कोई 10 सूरतें लेकर आओ। फिर अल्लाह ताला ने कहा चलो 10 नहीं ला सकते, 1 सूरत ही ले आओ भाई इसके लिए। तो आज 1400 साल हो गए हैं, कोई भी यहूदी, कोई नसारा, कोई मुशरिक, कोई मुनाफिक आज तक कुरान पाक की, ये कुरान पाक का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा मौजज़ा है। अच्छा देखिए, फिर जितनी कौमें आई हैं उनके ऊपर अज़ाब इलाही नाज़िल हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले हुज्जत तमाम की। हुज्जत क्या होती है कि उन्होंने दर्स दिया, पहले तौहीद के बारे में बताया, फिर अपनी रिसालत के बारे में बताया, रिसालत की अहमियत बताई, नबूवत की अहमियत बताई, और फिर फरमाया उनकी कौम में जो जो गुनाह होते थे, जैसे लूत अलैहिस्सलाम की कौम में बदफेली का गुनाह किया जाता था, हूद अलैहिस्सलाम की कौम में
मतलब क्या उससे कहते हैं, वहां पे भी बहुत ज्यादा वो लोग गुनाह करते थे। नाप तोल में कोई शुएब अलैहिस्सलाम को नाप तोल में कमी किया करते थे। ये सब लोग जो थे अल्लाह ताला के इनकार करते थे, उसके रसूलों का इनकार करते थे, और कोई ना कोई किसी किस्म का गुनाह कर रहा होता था, और ये गरीबों के ऊपर जुल्म करते थे। इसी तरह फिर जब उनके मौजज़ात भी आते थे फिर भी वो उनका इनकार कर देते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? यहां पे एक बड़े पॉइंट है मोहब्बत वाला कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है अल्लाह, यूनुस अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है ना, तो उन्होंने भी सब ने कहा कि अल्लाह हम इससे बरी हैं, इनसे बरी हैं, ये तेरे बंदे हैं, तू चाहे इनको अजाब दे चाहे इनको बख्श दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला इन्होंने तेरी बड़ी नाफरमानी कर दी तो इनको अजाब दे दे। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मौला इन्होंने तेरी नाफरमानी की है तो इनको अजाब दे दे। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। जब ये आयतें कुरान पाक में नाजिल हुई और ये अजाब की बातें हो रही थी, हर नबी पीछे हट गए ना कि अल्लाह ताला हमने तो बड़ा इनको समझाया, बड़ा इनको कहा, जैसे आज भी कहा जाता है लोग अमल नहीं करते। तो फिर क्या हुआ कि फरमाया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत पढ़ी ना तो हुजूर की आंखों मुबारक में आंसू आ गए। तो हुजूर ने फरमाया मौला मेरी उम्मत, मौला मेरी उम्मत, मौला मेरी उम्मत। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि जनाब साहब अल्लाह तेरी उम्मत है, तेरे बंदे हैं, तू जो चाहे कर, नहीं, ये मेरे आका हुजूर जो है ना वो अपनी उम्मत से बेइंतहा प्यार करते हैं। तो इस प्यार को भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, कि मैंने तुम्हें इतना प्यारा रसूल भेज दिया, इतना अफजल रसूल भेज दिया कि तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उनको गिरा गुजरता है, उनको तकलीफ होती है। जैसे बच्चे की तकलीफ पे माँ बाप तड़प उठते हैं, इसी तरह उम्मत की तकलीफ पे हुजूर तड़प उठते हैं। और फिर फरमाया हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं बहुत ज्यादा भला चाहने वाले हैं मेरे महबूब जो हैं, बहुत ज्यादा अपने उम्मत के लिए रऊफ भी हैं और रहीम भी है, मेहरबान भी हैं। तो अब अंदाजा करें, मैं मुख्तसर आपको बयान कर रहा हूं कि उन लोगों ने जो गलत काम किए उनके ऊपर अजाब आया, लेकिन हुजूर की रहमत लिल आलमीन का इजहार आज भी हो रहा है कि अल्लाह ताला हुजूर की रहमत लिल आलमीन होने का वास्ता सदका हमारी शक्लों को नहीं बिगाड़ता। वसहाबो सब्द थे जिनको मना किया हफ्ते वाले दिन तुमने नहीं करना शिकार, तो उन्होंने किया, उनको अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया। इसी तरह कुछ लोगों ने इनकार किया, अल्लाह ने उनको खिंजीर बना दिया। तो हुजूर ने फरमाया वो ये जो लोगों की शक्लें बिगड़ जाती थी वो 3-4 दिन के बाद मर जाते थे वो लोग। अब उनकी जो अब के जो बंदर या सूअर है वो उनकी औलाद में से नहीं है। कुछ लोग ऐसे समझते थे ना, लेकिन हमें ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, वो उनकी औलाद में से नहीं है, बल्कि उनकी शक्लें अल्लाह ने बिगाड़ी और फिर उनको कर दिया। क्योंकि यहूदी कहते थे कि हमारे बाप दादा बड़े नेक लोग थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया चुप कर जाओ, तुम्हारे बाप दादा कोई नेक लोग नहीं थे, इन्होंने 13 अंबिया इकराम को शहीद किया, इन लोगों ने बहुत ज्यादा बेअदबी गुस्ताखी की। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बताता चलो, मोहब्बत भरी बात है कि देखें कि लोग कहते हैं ना कि यार अगर वो कादियानी है तो क्या हुआ, वो बदमज़हब है तो क्या हुआ, या वो अगर उससे कोई बेअदबी गुस्ताखी कर दी तो क्या हुआ है। अल्लाह ताला ने सायक़ुल सुफ़हा दूसरे पारे का शुरुआत की है बेवकूफों के नाम से की है अल्लाह ताला ने। सायक़ुल सुफ़हा, हाँ, जिसको हम कहते हैं हमें इतने अल्फाज पढ़ने से नेकियां मिल गई हैं, और बीच में अल्लाह ताला ने कहा वो जलील लोग हैं महबूब जो बेअदब और गुस्ताख हैं। फिर मुनाफिक कहा गया, मुनाफिक हमेशा झूठे, बद किरदार, फासिक, ये सब अल्लाह ताला ने उनके लिए बातें इस्तेमाल की है। अच्छा देखें, वो लोग अल्लाह को तो मानते थे ना, एक अल्लाह को तो मानते थे, बाद में शैतान ने उनको कहा कि जी फलाना तुम्हारा बड़ा, उसके बुत बना के या उसकी रूह जो इस बुत में आ गई, तुम इसकी पूजा करना शुरू कर दो। लेकिन वो अल्लाह को मानते थे। तो मैं महबूब ये मुझे मानते हैं, मुझे कोई गर्ज नहीं है, मैं तो बेनियाज हूं, अल्लाह हुस्समद, लेकिन मैं इनको तब मानूंगा, मैं इन पर अपना फजल तब करूंगा, मैं इनको बरकतें तब अता करूंगा, रहमतों का नज़ूल तब करूंगा जब महबूब ये आपके दर अक़दस पर आ जाएंगे। जब ये आपके दर अक़दस पर आके तौबा करेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे, तो मैं आपका रब हूं, तो मैं इनके तौबा इस्तग़फ़ार जल्दी कबूल कर लूंगा। देख ले ग़ज़वा तबूक में कई लोगों ने जनाब साहब उनके इस्तग़फ़ार कबूल नहीं हुई, तो वो हुजूर की बारगाह में आए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब आपने इनको माफ नहीं करना, अभी इनको देखें, अभी इनकी हमने तौबा मौखर कर दी है। 50 दिन तक वो लोग फिर क्या करते रहे, उनको पता चला कि अगर अल्लाह को राजी करना है तो अल्लाह ऐसे नहीं राजी होगा जब तक उसका महबूब राजी नहीं होगा। तो उन्हें दिन रात सिर्फ दुरूद और सलाम पढ़ा, इतना दुरूद पढ़ा कि अल्लाह उनसे राजी हो गया। फरमाया महबूब मैं उनसे राजी हो गया, क्यों कि वो अब आपके आशिक हैं, आपके गुलाम है, उनसे गलती हुई है, तो उन्होंने तौबा भी किया और आप पर दरूद भी बेशुमार पढ़ा उन्होंने, तो इसलिए मैंने अब उनके सारे गुनाह माफ कर दिया। तो पुराने पाक में बार बार इरशाद हो रहा है, सारी उम्मतों के जो लोग थे ना, वो जब कोई काम उनको नहीं नजर आता था कि यार अब हमारी शफाअत नहीं होनी है, वो हमारे काम नहीं होने,
तो वो क्या करते थे कि सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, आखिरी नबी मौला जो तशरीफ लाने हैं, उनका वास्ता, उनका सदका देते हैं, तुम्हारी तौबा कबूल कर ले। तो ये अस्तगफार जो है ना, सूरह तौबा पूरी में अस्तगफार का जिक्र बार बार आया, बार बार आया। देखिए इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा मेरी औलाद नहीं होती, हमारा इस्तगफार का विर्द किया करो या रसूल अल्लाह। जब उन्होंने इस्तगफार का विर्द इतना ज्यादा किया 700 मरतबा उस बंदे ने, तो अल्लाह ताला ने फिर उसको कुछ महीने बाद औलाद की नेमत अता फरमाई। तो किसी ने कहा कि जाके पूछना इमाम हसन से कि उनको कहां से पता चला। हमारे सूरह हूद में अल्लाह ने बयान फरमाया कि अगर तुम इस्तगफार करोगे, उनके ऊपर अजाब नाजिल हुआ था, बारिशें खत्म हो गई थी, औरतें बांझ हो गई थी, तो फरमाया अगर तुम इस्तगफार करो अल्लाह के हुजूर और तौबा इस्तगफार करोगे ना, नमाज अदा करोगे, तो फिर क्या होगा, अल्लाह ताला तुम्हें औलाद भी अता फरमाएगा, तुम्हें वसी रिस्क भी अता फरमाएगा। और देखिए ये सूरह हूद में है। अब हम लोग तो ये आयतें पढ़ के गुजर जाते हैं, लेकिन जो हमारे बड़े बड़े इमाम है, सहाबा है, उन्होंने हमें बताया कि इन आयतों से हमने कैसे अमल करना इन आयात पर, और इन आयात पर अमल करके हमारी जिंदगियां कैसी अच्छी हो जाएंगी। और वैसे भी इस्तगफार करने का ये अशरा है, तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार करें और दुआ किया करें अल्लाह ताला हमें बेअदबों में ना रखना, हमें बदतमीजों में ना रखना, बद इखलाकों में ना रखना, बल्कि अल्लाह ताला हमें अच्छी अपने औलिया की संगत, सोहबत और कुर्ब अता फरमाना, ताकि हम भी तेरे इबादत गुजार बने, तेरे फरमाबरदार बने, और हमें ना शुक्रापन करने ना देना, ना शुक्रापन। जो ना शुक्रे लोग होते हैं ना, फिर उन्हीं के ऊपर अजाब आते हैं और उनकी वजह से दूसरे लोगों पर भी अजाब नाजिल होते हैं। आखिर में सूरह यूसुफ जो है 12वें पारे में बयान किया गया है, तो सूरह यूसुफ जो है वो आप तमाम से गुजारिश है कि वो जरूर सुने। इसमें देखें अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया का जिक्र किया, लेकिन उनमें सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं किया। उनके लिए स्पेशली अल्लाह ताला ने पूरी सूरत बना दी, अंदाजा करें। तो ये सारे मामलात, उसमें सियासत का भी बताया गया कैसे करनी है, बद किरदार लोगों के क्या मामलात होते हैं, जो पाक दामन लोग होते हैं अल्लाह उनको कितना पसंद करता है, उनके लिए ताले दरवाजे सब कुछ खोल देता है। जो तकवा इख्तियार करने वाले होते हैं तो अल्लाह ताला उनके ऊपर बड़ा करम करता है। तो इसी तरह इन पारों में बार बार औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन, मोमिनीन की शान अल्लाह ताला ने बयान की है। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे, आप और हम सबको अपने प्यारे महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, और उनकी मोहब्बत का नूर हम सबको अल्लाह पाक अता फरमाए। और आप सबसे गुजारिश है कि जरूर रोजाना जो माशाल्लाह से क्लास होती है यूट्यूब चैनल पर, आप उसको लाइव सुन सकते हैं। अगर लाइव किसी मसरूफियत की वजह से नहीं सुन सकते तो कोशिश करें रिकॉर्डिंग जरूर सुने, ताकि आप जान सकें कि आपके रब ने आपसे क्या बातें की हैं। ये सारा कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, ठीक है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हमें मिला है। तो इस पूरे कुरान में बार बार ये बयान फरमाया जा रहा है कि बस मेरे महबूब के कदमों में आ जाओ, मेरे महबूब पर दुरूद और सलाम पढ़ो, मेरे महबूब की अजमत और शान बयान करो, अपनी औलादों में बैठ के, अपने रिश्तेदारों में बैठ के, जब भी किसी से मिलो बस हुजूर का तज़किरा करो। फिर देखो तुम्हारी जेबें भी भर जाएंगी, तुम्हारी रूहें भी मुअत्तर हो जाएंगी, और अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत के में भी आला और अरफा मुकामात जो है वो अता फरमाएगा। जो हजूर के गुलाम होते हैं अल्लाह ताला ने उनके लिए लफ्ज भी इस्तेमाल किया, रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह उनसे राजी हो जाता है फिर, और वो फिर अल्लाह से राजी हो जाते हैं। फिर ये भी फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाही, महबूब जो आपकी उम्मत के औलिया बन जाते हैं, जो तकवा इख्तियार कर लेते हैं, जो आपके हो जाते हैं महबूब, फिर उनको कोई गम नहीं रहता, कोई परेशानी नहीं रहती, बल्कि जो उनके पास बैठता है अल्लाह उनको बरकतें अता करना शुरू कर देता है। तो ताकीद भी की कि मेरे महबूब की उम्मत के औलिया की बारगाह में बैठा करो जो इनाम याफ्ता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू मअस सादिकीन। बस दुआ कहते हैं अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको औलिया की संगत और उनका कुर्ब अता फरमाए, उनके कुर्ब से फैज़े रूहानी भी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला मेरी, आपकी, हम सब की मुश्किलों को आसान फरमाए, और अपनी बारगाह में बार बार तौबा इस्तग़फ़ार जो है वो पेश करते रहने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।